नेक्स्ट कमिंग टू मैन मेड मेथड्स और आर्टिफिशियल मेथड्स. आर्टिफिशियल मेथड्स में सबसे पहला मेथड है बैरियर मेथड. नाउ बैरियर मेथड नाम से पता लग रहा है वी आर क्रिएटिंग अ बैरियर बिटवीन द ओवम एंड द स्पर्म मीटिंग. हम ओवम और स्पर्म के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं सो दैट दे डू नॉट मीट एट ऑल. Okay, so the first here in the barrier method is condoms. So condoms, they are made up of thin rubber or the latex sheath which is used to cover the external genitalia of the male, or it may also be used to cover the external genitalia of female. Vagina और cervix को भी cover कर सकते हैं ताकि इसमें क्या हो कि जब भी ejaculation हो the semen do not enter into the female reproductive tract. So this can prevent conception. Again, the chances of failure are also there. Not as much as the natural method, the chances of failure are there if it tears up. Then is the product that is Nirod, which is popular product, and the government is popularizing it so that they can control the population. Now, the increase is usually, the use of the condoms has increased in the recent years because of the additional benefits as it protects it from the person from the STDs like AIDS. Okay, AIDS से भी prevent करता है because there is कोई भी body fluid का exchange नहीं हुआ. Body fluid का जहाँ exchange होता है वहाँ पे sexually transmitted diseases का chances होते हैं, वहीं पे ही होती है. तो यहाँ पे body fluid exchange नहीं हो रहा है. There is a barrier in the middle. Next thing is male और female condoms जो होते हैं वो disposable होते हैं. They can be self-inserted. These are the advantages. Okay, self-inserted होते हैं and therefore the privacy of the user is always there. There is no involvement of doctor or anyone else here. Okay, so it considers the privacy of the user. Next thing is the diaphragm, cervical caps, vaults are also the other barriers. Okay, so ये जो diaphragm, cervical caps or vaults are, these are used to cover the female reproductive tract. Just like condoms are used to cover the male tract, here the female tract is covered with the diaphragm, cervical caps or vaults. ये क्या करती हैं? If the person ejaculates also, inseminates also, the entry of the sperm is not there. Okay, the sperm doesn't enter into the female reproductive tract through the cervix because cervix is covered with it. Okay, it is blocked. Again, they are reusable. Next thing is these are spermicidal creams. There are certain spermicidal creams, jellies, forms which kills the sperm. Suppose if the person has inseminated also, in that case what they do is they use these creams or jellies or forms so that it kills the sperm. Spermicidal, cidal means to kill. Spermicidal means to kill the sperms. So these creams, they kills the sperm. Next thing is intrauterine devices. Now here in case of these intrauterine devices, the privacy of the person is hampered. Why? Because it is inserted by the doctors or the expert nurses. Okay, so the females, what they can do is in their uterus, they can insert these devices. Okay, and they are inserted in the uterus through vagina. So what happens here is when the person uses the intrauterine devices, they can be medicated or non-medicated. Okay, so non-medicated IUDs are Lippes loop. They can be formed of copper. For example, they have shown this. If this is inserted into the uterus of female के uterus में ये T जैसा structure जो है बीच में ये insert कर दिया है. What will happen? The sperm won't be able to reach. कहीं से भी sperm नहीं पहुंच पाएगा. Next thing is जो fertilization हो रही है वो fallopian tube में हो रही है. So we don't want sperm to reach to the fallopian tube. तो fallopian tube में हमने uterus के through ही रोक दिया. वहाँ पे एक device fit कर दी. Now this T-shaped device, if I make it of copper, अगर ये copper की बनी हो, for example here in the diagram shown, it is made up of copper. Copper का फायदा क्या होता है? Copper के जो ions होते हैं, they are spermicidal. ओके ये क्या करते हैं स्पर्म्स की जो मोटिलिटी है उसको एकदम रिड्यूस कर देते हैं. मोटिलिटी को रिड्यूस कर दिया मतलब दे कैन नॉट रीच, राइट. तो उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने की क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी. सो दे आर कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज आल्सो लाइक कॉपर डी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375. इसके अलावा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज भी होते हैं. ओके, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या होते हैं?
फॉर एग्जाम्पल प्रोजेस्टासर्ट LNG-20। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी मतलब कि ये वो आईयूडीज है जो स्लोली दे आर रिलीजिंग दी हॉर्मोन्स को रिलीज कर रहे हैं सो दैट इट प्रिवेंट्स द contraction or the meeting of sperm and the egg. Okay, so IUDs, what they do, they increase phagocytosis of sperm within the uterus. Copper releasing IUDs, they reduce the motility of the sperm and hence the fertilizing capacity of the sperm. Okay, इसके अलावा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज जो होती है वो यूट्रस को एकदम अनसुटेबल बनाते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, and the cervix hostile to the sperm. What do you mean by cervix hostile to the sperm? That cervix will not give favorable environment to the sperm. It would provide unfavorable environment to the sperm, and sperm would not be surviving in this cervix. They will be dying there only. Next is IUDs. They are ideal for the female contraception who want to delay their pregnancy. जिनको अपनी प्रेगनेंसी 2-3 साल तक डिले करनी है या ज्यादा सालों तक डिले करनी है, तो वहां पे these are widely accepted methods. Next is dosage, oral administration of hormones. Now this method will do in detail क्योंकि it is relating to the menstrual cycle of the female, right? We have discussed a part of it in the previous chapter also कि कैसे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है डोसेस का, प्रोजेस्ट्रोजेंस का, प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशंस का, दे एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. क्या काम करते हैं? व्हाट हैपेंस इज फीमेल्स दे आर प्रोड्यूसिंग GnRH by hypothalamus which is producing stimulating the pituitary to produce LH and FSH. FSH goes to the follicle और क्या करता है? ईस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करवाता है, राइट? सेम वे LH क्या करवाता है? ओव्यूलेशन करवाता है. ओव्यूलेशन होने के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा वो क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम इट विल फॉर्म प्रोजेस्ट्रॉन. तो ये सब क्या है? फीडबैक से हो रहा है एक के बाद एक. ऐसा तो नहीं है कि GnRH बन रहा है और ये LH नहीं बन रहा है फिर आगे ये प्रोजेस्ट्रॉन बन रहा है. नहीं, अगर बीच में एक भी ऑल्ट हो गया तो नहीं बनेगा. अगर ईस्ट्रोजन जो है वो बन रहा है तो वो आगे GnRH की प्रोडक्शन अपने आप कम करवा देता है. नेगेटिव फीडबैक. ओके, सो दिस इज हाउ द बॉडी इज कंट्रोल्ड. तो अगर मैं क्या करूं, पहले से ही बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन इंजेक्ट कर दूं इंटेंशनली बॉडी में, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन या तो इंजेक्ट कर दे या फीमेल खा ले, टैबलेट खा ले हार्मोन की, तो क्या होगा? बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जब होंगे, ब्लड के अंदर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन जब होंगे तो वो क्या करेंगे? हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को सिग्नल देंगे कि भाई LH और FSH मत सिक्रीट करो, क्योंकि नॉर्मली भी तो यही हो रहा था ना बॉडी में. अगर देखें साइकिल में, if I make a pie chart, so let's say these are the 5 days where the menstrual cycle is occurring. यहाँ पे menstrual cycle हो रही है. So let's say this is 1 to 5th day. Now 5th day till the 14th day. Till the 14th day. What is happening? This is proliferative follicular phase. Follicles develop करते हैं, right? So this is follicular phase. 14th day पे क्या हो जाता है? Ovulation हो जाता है. और उसके बाद luteal phase start हो जाता है, right? This is the cycle. Follicular phase में estrogen का level ज्यादा होता है और luteal phase में progesterone का level ज्यादा होता है. मैंने क्या किया कि पहले से ये जो ईस्ट्रोजन था ये नॉर्मली बॉडी के अंदर क्या बन रहा था? इट वाज फॉर्मिंग विद द इफेक्ट ऑफ FSH, राइट? और ये जो प्रोजेस्ट्रॉन था इट वाज फॉर्मिंग विद द इफेक्ट ऑफ LH, क्योंकि इनडायरेक्टली LH ओव्यूलेशन करवा रहा है और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन बना रहा है. तो LH जब तक सिक्रीट नहीं होगा तब तक कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं बनेगा. मैंने क्या किया? इंटेंशनली पहले से ही प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन बॉडी में इंजेक्ट कर दिए, या द फीमेल शी इज कंज्यूमिंग प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन. तो जब वो कंज्यूम करेगी प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन तो FSH और LH नहीं बनेगा, क्योंकि उनका काम यही था, प्रोजेस्ट्रॉन FSH और LH का काम था ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन बनाना. जब ऑलरेडी बना हुआ है
तो FSH-LH की जरूरत नहीं है, ब्रेन सिक्रीट नहीं करेगा। ब्रेन सिक्रीट नहीं करेगा तो क्या होगा, कोई फॉलिकल डेवलप नहीं किया, क्योंकि इंटेंशनली ईस्ट्रोजन गया है बॉडी में, तो फॉलिकल डेवलप नहीं करेगा। फॉलिकल मैच्योर नहीं करेगा तो ओव्यूलेशन कभी होगी ही नहीं। आर्टिफिशियली सब कुछ हॉर्मोन्स प्रेजेंट है बॉडी में, राइट। अगेन गोइंग टू दिस पार्ट, FSH की वजह से फॉलिकल मैच्योर हुआ, फॉलिकल ने ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस किया, ईस्ट्रोजन ने वापस से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के पास गया कि भाई ऑलरेडी ये प्रोडक्शन चालू है, तो और ज्यादा FSH और LH मत बनाओ। ये होता है नॉर्मल फंक्शनिंग। नॉर्मल फंक्शनिंग में हाइपोथैलेमस GnRH सिक्रीट करता है, फिर उसके बाद वो पिट्यूटरी के पास जाता है, LH और FSH सिक्रीट करवाता है। FSH फॉलिकल्स के पास जाता है और ईस्ट्रोजन बनवाता है, LH ओव्यूलेशन करवाता है और कॉर्पस ल्यूटियम बनवाता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन बनता है, राइट। एक फीमेल है जिसने इंटेंशनली क्या किया, शी टुक मेडिसिन ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब डेज की बात करते हैं, यहाँ पे डे 1 से 28 था, राइट, पूरी साइकिल थी, जहां पे 1 to 5 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल, 5th to 14th डे तक या 13th डे तक फॉलिकुलर फेज, 14th डे पे ओव्यूलेशन, और फिर उसके बाद 15 से 28 डेज पे ल्यूटियल फेज। तो यहाँ पे इस टाइम पे ईस्ट्रोजन बनता था नॉर्मली। क्यों बनता था? बिकॉज FSH सिक्रीट हो रहा था। अगर FSH ही नहीं है तो क्या ये फॉलिकल मैच्योर करेगा? नहीं करेगा। तो इसका मतलब अगर मैं एंड प्रोडक्ट पहले से ही डाल दूं, तुम्हारे घर में ऑलरेडी खाना है, क्या तुम खाना बनाओगे? क्या मम्मी खाना बनाएगी? नहीं बनाएगी, राइट। ऑलरेडी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन है, तो क्या पिट्यूटरी FSH बनाएगा? नो, नहीं बनाएगा। तो क्या होगा? क्या फॉलिकल मैच्योर करेगा? नहीं करेगा, राइट। फॉलिकल मैच्योर नहीं करेगा तो क्या ओव्यूलेशन होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि LH भी नहीं बना, राइट। ओव्यूलेशन ही नहीं होगी तो क्या होगा? एग कभी बना ही नहीं, एग कभी नहीं बना, फर्टिलाइजेशन कभी होगी ही नहीं, राइट। तो इस केस में फीमेल्स क्या करती है, फर्स्ट से लेके अप टू अराउंड 23 डेज, ओके, 23 डेज के अराउंड वो क्या करती है, ये मेडिसिन लेना चालू कर देती है, ओके। फिर जैसे ही उनका वो छोड़ देती है मेडिसिन, तो मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज, क्यों मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो गया? बॉडी में ऑलरेडी मेडिसिन के थ्रू 23 दिन तक, 23 डेज तक ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जा रहा था। सडनली एक दिन फीमेल ने मेडिसिन नहीं ली, तो क्या हो गया? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर गया। प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा था? यूट्रस की वॉल को थिक करके बैठा था, क्योंकि 23 दिन तक फीमेल वो दवाई ले रही थी। 24th डे लेट्स से कि फीमेल ने ये दवाई नहीं ली, तो क्या हुआ? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम से गिर गया, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगी, राइट। द वॉल विल शेड ऑफ। So intentionally she takes for 23 days and then, or 21 to 23 days, and then she give up the pill. लेकिन इसमें गड़बड़ क्या होती है? What happens in this is कि यहाँ पे अगर फीमेल ने बाय चांस गलती से स्टार्टिंग में जो 21 से 23 दिन तक जो ले रही थी, इसमें बीच में इसने लेट्स से 5 दिन ली, फिर ये भूल गई, ओके, बाय चांस ये दवाई लेना ही भूल गई, तो क्या होगा? 5वें दिन बाद ही मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। फिर से उन्होंने मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक होने के बाद लेट्स से 8वें दिन से दोबारा दवाई लेना चालू कर दिया, फिर 3 दिन तक ली और फिर छोड़ दी, तो क्या हुआ? फिर से छोड़ दी, बाय चांस भूल गई, फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो यहाँ क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। सो द पर्सन हैज टू बी वेरी रेगुलर इन दिस। तो इसलिए इसके जो दवाइयों के चार्ट आते हैं वो भी इसी टाइम पे आते हैं, उस पर डे भी लिखा होता है, सो दैट शी डजंट मिस द डे, कि कौन सी डे की मिस करी, डे के हिसाब से वहां पे सारी दवाइयां लिखी होती है। तो पिल्स दे कम्स लाइक दैट, ओके। नेक्स्ट थिंग इज, एक और इस ट्रीटमेंट का, ये जो पूरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इसका एक और यहाँ पे एक और डिजीज को क्योर करने में
यूज किया जाता है वो क्या है, पीसीओडी। हमने पीसीओडी के बारे में क्या पढ़ा था कि जब ओव्यूलेशन होती है तो कुछ टाइम पे कई बार कुछ जो फॉलिकल्स है जो मेच्योर नहीं कर पाते वो वहीं सिस्ट बना देते हैं, राइट। जब वो सिस्ट बना देते हैं तो जब ये इकट्ठे क्लम्प होते हैं, बहुत सारे सिस्ट बनते रहते हैं, तो उस वजह से डिजीज हो जाती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। तो वो जो सिस्ट मेच्योर कर रहे थे, वो जो फॉलिकल्स मेच्योर कर रहे थे, वो किसकी वजह से कर रहे थे, एफएसएच की वजह से। मैंने इंटेंशनली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डाल के एफएसएच का सिक्रीशन रुकवा दिया, तो क्या हुआ, फॉलिकल मेच्योर करना बंद हो गया, फॉलिकल कोई मेच्योर हुआ ही नहीं, सिस्ट कभी बना ही नहीं। So this treatment is also used in treating PCOD. Okay, वहां पे भी सेम ट्रीटमेंट दिया जाता है, but there are certain side effects of this. तो यहाँ पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है फीमेल्स को इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स विच आर कॉल्ड एज पिल्स, जो कि उनको 21 दिन तक लेनी होती है, फॉर द प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और फिर उसके बाद जब 7 दिन का गैप आता है उस टाइम पे, जिस टाइम वो दवाई नहीं लेती है उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और फिर नेक्स्ट मंथ में फिर से वही पैटर्न रिपीट करना होता है। इसका मतलब फीमेल जो है वो डेली की डेली पिल्स पे ही है। इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न जब तक फीमेल जो है कॉन्ट्रासेप्शन चाहती है। ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करती है, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करती है, और लेकिन इट ऑल्सो inhibits or it also degrades the quality of cervical mucus और entry of sperm को retard करती है। Okay, so the medicine here is which is discovered by CDRI is Saheli, which is oral contraceptive pill, and it contains non-steroidal preparation जो once a week pill है, और इसके side effects भी कम है और contraceptive value भी ज्यादा है। Okay, नेक्स्ट थिंग इज, ये जो पिल्स है, पिल्स के सिस्टम के अलावा व्हाट फीमेल्स कैन डू, वो इम्प्लांट्स भी करवा सकती है या इंजेक्शंस भी ले सकती है। इम्प्लांट्स क्या होते हैं, इसमें पिल का जो हार्मोन का अमाउंट है वो उसमें इम्प्लांट में डाला जाता है, और स्लोली स्लोली धीरे धीरे पीरियड के टाइम पे ये पूरे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड है वहां पे धीरे धीरे रिलीज करते रहते हैं। तो वहां पे फीमेल को दवाई लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे इम्प्लांट से ही रिलीज हो रही है मेडिसिन। तो इसका इफेक्ट जो है वो लॉन्गर टाइम के लिए रहता है, वहां पे फीमेल को ये भी नहीं है कि मैं भूल गई। ओके, नेक्स्ट थिंग इज there are certain medicines which the female she has to take within 72 hours, within the 3 days of the coitus. Okay, और ये क्या करती है, इमरजेंसी जो कॉन्ट्रासेप्शन है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स कि जो ये ऊपर वाले जितने भी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड पढ़े दैट वाज प्रिकॉशनरी। ओके, वो प्रिकॉशनरी थे बिफोर द coitus. Now after the coitus what can be done, after the coitus, after the accidental coitus what can be done, 72 hours की जो पिल होती है लाइक अनवांटेड 72 और आई पिल, ये जो पिल्स होती है दे आर गिवन टू द फीमेल। ओके, इसके अलावा जो तीसरा मेथड है वो क्या है, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन, इसको हम स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, और यहाँ पे टर्मिनल मेथड है, लास्ट मेथड है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कपल जिनके एक एक या दो बच्चे हैं, एज पर द मतलब जितना उनका रहता है रिक्वायरमेंट या फैमिली प्लानिंग के अकॉर्डिंग, अगर एक करने थे या 2 करने थे या 3 करने थे, सपोज उन्होंने 2 करने थे, 2 हो गए, नाउ दे डजंट वांट एनी मोर चाइल्ड, और उनको चाहिए ही नहीं अब चाइल्ड, तो क्या हो सकता है, दे डोंट वांट, टर्मिनल एकदम खत्म हो गया अब नहीं चाहिए, राइट। तो उस केस में वो एक ऐसा मेथड भी ले सकते हैं जहां पे मेडिसिन वगैरह की जरूरत ही ना हो, एकदम टर्मिनेशन ही हो जाए, राइट। तो उस केस में सर्जिकल मेथड होता है स्टेरिलाइजेशन, स्टेराइल कर देते हैं पर्सन को। कैसे करते हैं, इफ मेल्स वांट टू डू इट देन इट इज कॉल्ड एज वेसेक्टमी। क्यों, क्योंकि वास डिफेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, कट करके बांध दिया जाता है। तो इस केस में जो पर्सन की नॉर्मल लाइफ है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ही कैन अंडरगो द कॉइटस। क्यों इसमें, क्योंकि यहाँ पे जो कॉइटस हुआ, जो सिक्रीशन आएंगी वो किससे आएंगी, सेमिनल वेसाइकल से आएंगी, प्रोस्टेट ग्लैंड से आएंगी, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड से आएंगी, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, सेमिनल प्लाज्मा तो आएगा लेकिन स्पर्म्स नहीं आएंगे, विदाउट स्पर्म्स।
ओके सो क्यों? क्योंकि हमने स्पर्म्स का जो पाथवे था उसको ब्लॉक कर दिया, वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया. सो सिंस वास डिफरेंस इज कट एंड टाइड, इट इज कॉल्ड एज वेसेक्टमी. फीमेल्स के केस में सिंस फेलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पे कहीं फर्टिलाइजेशन होती है एम्पुला रीजन में, तो यहाँ पे इनिशियल पार्ट में इसको कट करके टाई कर दिया जाता है ताकि स्पर्म्स दे डू नॉट रीच देयर, स्पर्म्स वहां तक पहुंचे ही नहीं. सिंस फेलोपियन ट्यूब इज कट, इट इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टमी. तो सर्जिकल इंटरवेंशंस क्या करते हैं? दे ब्लॉक द गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड प्रिवेंट्स द कंसेप्शन. तो ये स्टेरिलाइजेशन मेथड्स है, वैसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी. वैसेक्टमी में वास डिफरेंस को कट करके टाई किया जाता है, एक इंसिजन बनाया जाता है स्क्रोटम में जहां पे उसे कट और टाई किया जाता है. ट्यूबेक्टमी में फेलोपियन ट्यूब को कट और टाई किया जाता है, इंसिजन यहाँ पे कहाँ बनता है? एब्डोमेन में थ्रू वेजाइना. ओके एंड दे आर highly effective but reversibility is very poor. Suddenly अगर 1-2 साल बाद कपल कहे कि नहीं we want one more child, तो reversibility is very poor in this case. Okay, now next thing is, see there are certain side effects of these all the methods. सब methods के कुछ ना कुछ side effects है, सब methods के कुछ ना कुछ advantages हैं. There are advantages and disadvantages. If a couple wants to prefer any of the method, the thing is they should always consult to the medical professionals before using them. Medical professionals को consult करना चाहिए use करने से पहले. They are not regular requirements for maintenance of reproductive health. जो practice करते हैं, in fact they are practice against the natural reproductive event. Okay, conception और pregnancy को रोकने के लिए सारे methods हैं. तो या तो हम डिले कर सकते हैं, स्पेस कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, मींस सालों का गैप दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इन मेथड्स को यूज करके. ना दीज मेथड्स इनडायरेक्टली आर हेल्पिंग इन पॉपुलेशन कंट्रोल. लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स क्या है? एग्जांपल नॉजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इवन ब्रेस्ट कैंसर. हॉर्मोन्स के केस में इवन ब्रेस्ट कैंसर कैन बी happen to a female because of this prolonged hormonal treatment. ज्यादा लंबे टाइम तक जब ट्रीटमेंट होता है तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी होते हैं, and these cannot be ignored. So better is the natural methods again. Next thing is, ये तो सारे मेथड्स है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए. नाउ एक बार अगर हो गई तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है? दैट इज MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो दिस इज वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म. ओके, इसको हम इंड्यूस एबॉर्शन भी बोलते हैं. ना एस्टिमेट्स क्या बोलते हैं कि वर्ल्ड में हर साल 45 to 50 मिलियन MTPs होते हैं. दैट इज 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी. तो अगर कंसीव्ड प्रेगनेंसीज का कुछ अमाउंट है लेट्स से 100, तो उसमें से 20 क्या है? MTPs हो रहे हैं. तो MTPs का एक सिग्निफिकेंट रोल है पॉपुलेशन डिक्रीज करने में. MTPs, they even the females which who lives in rural areas, they also prefer MTPs because they can silently go there and terminate the pregnancy, right? Next thing is MTPs को इंडिया में ना तो लीगली एक्सेप्ट किया गया है और ना ही लीगली रिजेक्ट किया गया है. बहुत सी कंट्रीज हैं जहां पे ना तो इसको लीगली एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ही लीगली इसको रिजेक्ट कर सकते हैं. क्यों? सी एक्सेप्टेंस के क्या सपोर्ट है? एक्सेप्टेंस के लिए उन केसेस में MTP को एक्सेप्ट किया जा सकता है, एबॉर्शन को एक्सेप्ट किया जा सकता है जिन केसेस में वो अनवांटेड हुई है. फॉर एग्जांपल रेप विक्टिम्स. रेप विक्टिम्स के केस में इसको एक्सेप्ट करना चाहिए. इफ दे डोंट वांट द चाइल्ड, दैट इज देयर पर्सनल इशू, राइट? अगर किसी के ऑलरेडी बच्चे हैं, बहुत सारे 3-4 बच्चे हैं, दे डोंट वांट एनी मोर, उस केस में भी इसको लीगल करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए. बट इसका मिसयूज करते हैं. मिसयूज क्या? फीमेल फ्यूटिसाइड के लिए. 3rd मंथ में जैसे ही पता चला कि फीमेल चाइल्ड है, MTP करवा देते हैं. सो देयरफॉर इसको रिजेक्ट भी करना चाहिए. इसका डिसएडवांटेज है. रिजेक्शन क्यों होना चाहिए? फीमेल फ्यूटिसाइड के लिए. तो रिजेक्शन के लिए क्या पॉइंट है? फीमेल फ्यूटिसाइड होता है इसका
ओके, तो यहाँ पे बहुत सी कंट्रीज हैं वो इस पे डिबेट करते रहते हैं कि वेदर टू लीगलाइज इट और नॉट टू लीगलाइज इट, क्योंकि इसके बहुत सारे इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस और सोशल इश्यूज है। रिलीजियस इश्यूज जैसे कि एक जान है, उसको नहीं मारना चाहिए, right? Ethical issues, that was a human life, again it comes in a ethical issues कि एक human life थी, everybody has human rights, they have right to survive, right to life सबको है, तो right to life में वो बच्चा क्यों नहीं आ रहा है? जब गवर्नमेंट दे रही है राइट टू लाइफ सबको, तो उसमें वो बच्चा क्यों नहीं आ रहा है? सो देयर आर एथिकल इश्यूज। लेकिन इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लीगलाइज करना पड़ा 1971 के टाइम पे। दिस वाज अ टाइम व्हेन इंदिरा गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ इसको लीगलाइज किया गया और यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेक्स रखे गए ताकि फीमेल फिटिसाइड ना हो। तो एमटीपी लीगल है इंडिया में, बट फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए अलग से हमने लॉज बनाए, जहाँ पे डॉक्टर्स के लिए बहुत लीगल एक्शन लिया जाएगा अगर वो बताते हैं, और जो करवाता है, पेरेंट जो करवाता है, उसके लिए भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पे इलीगल फीमेल फिटिसाइड के जो चांसेस होते हैं उनको हमें एक स्ट्रिंजेंट लॉ से टाई करना पड़ेगा, ताकि ये लॉज जो है उन सबको बचा के रख सके, उन सारी फीमेल्स को बचा के रख सके। ओके, सो MTP, why MTP? The answer is to get rid of unwanted pregnancy. क्यों? Because that was done because of unprotected coitus और failure of contraception pills. जो भी contraception pills अगर use किया है, कुछ भी method use किया, उसका failure हो गया. So in that case, the person undergoes MTPs, or in case of rape victims also. Okay, लेकिन अगर MTPs वहां पे भी परफॉर्म किया जाता है जहां पे वो इंटेंशनली नहीं चाहते चाइल्ड को टर्मिनेट करना, फॉर एग्जाम्पल देयर आर सर्टेन केसेस, वहां ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे द चाइल्ड इज वेरी वीक, ओके, या जो प्रेगनेंसी है इट इज वेरी फैटल, वो उसमें किसी को भी नुकसान हो सकता है, या मदर को या चाइल्ड को, या चाइल्ड ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यूट्रस बहुत वीक है, तो उस केस में मदर को भी चांसेस होते हैं। तो उस केस में इंटेंशनली उनको, डॉक्टर्स को मजबूरी में, इंटेंशनली सोच समझ के मजबूरी में उन्हें एमटीपी परफॉर्म करना पड़ता है, जबकि मदर्स या पेरेंट्स जो है वो नहीं चाहते, वो चाहते थे उस बेबी को। ओके, तो वो देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहां पे मजबूरी में भी इसे परफॉर्म करना पड़ता है। तो एमटीपीज कब सेफ होती है? दे आर सेफ इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर में दे आर रिस्कियर, बहुत रिस्की होता है। और ये जो डिस्टर्ब ट्रेंड है कि जहां पे ये पता लग जाता है माइनोसेंटेसिस से कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड और ये सब, तो ये जो मेन लीगल जो बनाया गया ना, वो फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए बनाया गया। तो पहले उस ट्राइमेस्टर में तो बताना ही नहीं है, और उसके बाद अगर उन्होंने परफॉर्म भी किया ना एमटीपी डॉक्टर्स ने, नोइंग दैट इट इज रिस्कियर, तो उसके लिए और भी स्ट्रिंजेंट लॉज है। ओके, सो दैट इज कि ये जितने भी एमटीपीज होते हैं, मेजोरिटी ऑफ एमटीपीज इन आवर कंट्री, दे आर परफॉर्म इलीगली बाय अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स। ओके, जो सेफ मेथड्स यूज नहीं करते हैं, दैट इज नॉट सेफ एंड दैट इज फैटल टू। ओके, तो यहाँ पे फीमेल चाइल्ड को अबॉर्ट करने के लिए किया जाता है एमटीपीज, विच इज लीगली वेरी रॉन्ग। तो इसके लिए काउंसलिंग करनी पड़ती है। वी हैव टू चेंज द माइंड सेटअप। सी, हम चाहे कितने भी लॉज बना लें, कितने भी लॉज या कितने भी राइट्स दें, किसी को भी दें, या कैसे भी राइट्स, नॉट ओनली इन दिस केस, एमटीपी के केस में ही नहीं बोल रही हूँ, सब केसेस में हम चाहे कितने भी बोलें कि गर्ल्स को इक्वालिटी दो, राइट्स है, अगर कोई फीमेल डिसाइड करता है उसके लिए लॉज हैं, उसके लिए आप जुडिशरी को नॉक कर सकते हो, या राइट टू इक्वालिटी है, जो भी राइट्स हैं, ये तब तक हमारे अंदर, हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करेंगे जब तक जो सिटीजन्स हैं, हम लोग हैं, उनका माइंड सेटअप नहीं चेंज हो जाता। अगर माइंड सेटअप ही चेंज हो गया तो इन लॉस की जरूरत ही नहीं है फिर, राइट? ये लॉस क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी ये माइंड सेटअप, ये ऐसी जो इल हैबिट्स है, ये ऑलरेडी है, राइट? तो हम चाहे कितने लॉज बनाए, जिनको ये सब करना है वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं, लेकिन हाँ, इससे नंबर जो है, डर जो है वो पैदा हो जाता है, नंबर कम हो जाता है। बट द थिंग इज, दिस लॉज आर नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज कि हम अपना सोशल जो माइंड सेटअप है वो चेंज करें। ओके, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
तो इन सबको एमटीपीज के लिए जितने भी ये बोलते हैं ना कि लॉज बनाओ ये बनाओ, उसके रूट कॉज जो है वो क्या है कि दे फील लाइक कि गर्ल जो है वो लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है। तो अगर उसी को ही चेंज कर दिया जाए तो ये सारे लॉज का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत इजी हो जाएगा, या इनकी हमें कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, राइट। तो सोशल बैकग्राउंड चेंज करना इज मोर इम्पोर्टेंट, अवेयरनेस क्रिएट करना इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड विमेन एम्पावरमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसलिए हमारे बहुत से लॉज है जहाँ पे हमने फीमेल्स के लिए स्टेट्स जो जितनी भी है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी है हमारी, उनको पूरा पूरा राइट है, अगर वो वुमेन के लिए कुछ स्पेशल उनको देते हैं, फीचर्स देते हैं, कुछ भी उनके लिए स्पेशल एक्शंस लेते हैं, दे आर अलाउड। फॉर एग्जाम्पल जब हम बोलते हैं कि राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी है, तो भाई इनके लिए विमेन के लिए सीट जो है वो क्यों रिजर्व्ड रहती है, रिजर्वेशन क्यों है? वो बिकॉज वो क्रिएट करे, वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करे। इट इज नॉट अबाउट इक्वालिटी, इट इज अबाउट द टर्म इज इक्विटी। हमको उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, दैट इज अबाउट इक्विटी। ओके, सो एक ही सॉल्यूशन है, रूट कॉज को ही खत्म कर दो, एंड द रूट कॉज कैन ओनली बी like we can get rid of root cause only when we do women empowerment in our nation.